جس سمت دیکھیے وہ جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. ہلو، السلام علیکم. جی کون صاحب؟ ہلو ابھی صاحب بول رہے جی ابھی صاحب بول رہے ہیں. ہاں نور حسن بول رہا ہوں. آپ کون؟ حضرت میں اعلیٰ حضرت کا ماننے والا. اچھا اچھا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی حضرت فرمائیے. میں آپ کی ایک ویڈیو سننا تھا بیٹھے گا. اچھا سلام کے اوپر جی ابھی سلام کے اوپر ایک ویڈیو سننا تھا. میں آپ کی اس سمے میرے موبائل میں یوٹیوب پہ سن رہا ہوں. اچھا جی. اور میں یہاں شکچھا سے بول رہا ہوں اتراکھنڈ. آپ اتراکھنڈ سے ہیں؟ جی جی. اچھا ماشاء اللہ. کون سی جگہ سے حضرت؟ میں اتراکھنڈ اس سمے پھول بھٹے میں ہوں. اچھا پھول بھٹا. ہاں سنا ہوگا آپ نے پھول بھٹا. یہ تو ہلدوانی کی طرف ہے شاید کہیں. ہاں ہاں آپ کو زیادہ دور سے تھوڑی ہیں, آپ رامپور کے ہیں حضرت. ہاں 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 یہ ہلدوانی سے پہلے ہی پڑے گا نا پھول بھٹا؟ ہاں یہ بہت پہلے پڑے گا. یہ بحری اسلام ہے. یہ جو مندر پڑتا ہے روڈ پہ, جی جی اس سے پہلے ہی ہے شاید. پھول بھٹا ہاں اس سے پہلے ہی ہے. ہاں کانٹا بھی ہے نا پھول بھٹے پہ. ہاں ہاں کانٹا ہے. ہاں گنا جہاں پہ تلتا ہے. گنا وہ تھوڑا سا آگے کو ہے. اچھا اچھا وہ آگے کو ہے. جی جی. اچھا اچھا یہ جو ادھر کیا نام ہے جو ادھر کیا نام ہے رام نگر کی طرف کو جو روڈ گیا, جی جی رام نگر کی طرف کو جو روڈ گیا اس سے بھی اس کے آس پاس ہی ہے شاید. ہاں اس کے آس ہی پاس ہے. جی کالا ڈھونگی کو جو راستہ گیا ہے. جی 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 ہاں پچھم سائڈ میں کو. تو حضرت میں آپ کو آپ کی محنت کی مطلب مبارکباد دینا چاہتا ہوں. اور آپ نے بھجیاں اڑانی بھابھیوں کی اہل حدیثوں کی, اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اور آپ کی محنت برکت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آمین ثم آمین. ہمیں ایسے شیروں کی ضرورت ہے, شیر اہل سنت کی ضرورت ہے ہمیں. میں شیر نہیں ہوں حضرت, میں تو شیروں کا غلام ہوں, شیروں کا خادم ہوں. ارے حضرت بن کے نہیں آتے ہیں, اصل میں آپ شیر ہیں. حالانکہ میں بھی اہل سنت والجماعت سے ہوں. جی. اور اللہ اولیاء کا چاہنے والا, اعلیٰ حضرت سے ماننے والا. ماشاء اللہ. بلکہ اعلیٰ حضرت سے ماننے کی بات یہ ہے کہ میں انہیں بہت دل سے مانتا ہوں. امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو. جی جی جی. ہاں میں سارے ولیوں سے تو محبت کرتا ہی کرتا ہوں, مگر اعلیٰ حضرت سے بھی میں بہت محبت کرتا ہوں, اس لیے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی ہے. پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایمان بچایا ہے. بے شک بے شک صحیح بات. ہاں جتنے بھی بزرگان دین ہیں ان کو آج اگر ہم مانتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے ذریعے سے مانتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا ہے, سمجھایا ہے. ہاں بے شک. غوث اعظم کی اگر عظمت بتائی ہے تو میرے اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے. حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی اگر شان و عظمت بتائی ہے کسی نے تو اعلیٰ حضرت نے بتائی ہے. رسول پاک کا مقام و مرتبہ اگر بتایا ہے تو اعلیٰ حضرت نے بتایا ہے. جی بلکہ اصل میں حضرت ہے کیا کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مطلب ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمارے علماء کو برا کہا ہے, کافر کہا ہے. ٹھیک ہے, تو ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو بعد میں کہا تھا ان کو کافر, بلکہ ان کے خود باپ داداؤں نے ان کو کافر قرار دیا. جی خود ان کی کتابوں میں پہلے ہی لکھ دیا گیا کہ یہ کفر ہے. ایک کتاب سے حوالہ یہ دے رہے ہیں کہ اس کو کافر مت کہو, اور نبی آقا کی شان میں گستاخیاں کرنے. جی اب ان کو مارنے کے لیے, ان کو پلٹنے کے لیے خود ان کو ہی بندے مطلب تیار ہو گئے. جی ان کا رد کر رہے ہیں. جی
अब ये अपनी बात को इसलिए मनवाना नहीं चाहते कि असल में अल्हम्दुलिल्लाह आपको इल्म है, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ और न मुझे तहजीब है बात करने की, कैसे बात की जाए आप जैसे लोगों से, वरना अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपकी गुलामी नहीं करनी मुझे। और मैं आपका फैमिली हूँ, बहुत अच्छा लगता है जब आप ये बातें करते हैं और सुनी भी होता है, मैं लोगों को सुनवाता हूँ कि देखो भाई एक शेर निकल के आया हमारे उसमें, ऐसे मुकाबला करने वाला। लोग कहते हैं कि कौन है, हम बताते हैं कि ये वो है। बहरहाल इन लोगों को जो है मैं तो यही चाहता हूँ कि इनको ज्यादा खदेड़ा जाए, ज्यादा से ज्यादा खदेड़ा जाए। और एक पुलिस वाले से आपकी बहस हुई थी, बल्कि पुलिस वाला नहीं था, मैं अभी सुन रहा था और एक मोबाइल मेरे पास रखा हुआ है, एक छोटे मोबाइल से बात करना है, दूसरे उससे वीडियो सुन रहा हूँ मैं आपकी। अच्छा जी हाँ, सलाम के ऊपर जो बात सुनी कहिए जी। अभी आपकी विद्युत बहस कर रहा है और तो सुन रहा हूँ थोड़ा सा मैं इसमें। जी देखिए मैंने कल कई बार नंबर लिया था, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ नंबर पहुँचा। अच्छा, जब आपने अभी दोपहर में सुना था लगभग 12 बजे के टाइम, तो आपने जब नंबर बताया अपना ठीक है, तो मैंने तुरंत उतार लिया। अच्छा। तो आपने को काफी नहीं देना चाहिए, कुछ भी उससे मतलब नहीं है, पता चलना चाहिए ना जैसे वहाँ की मौलवी भी। हाँ हजरत, इन्होंने एक बात ये कही थी कि देवबंदी वाले ये कहते हैं, मलाऊ जी, ये कहते हैं कि काफिर को काफिर मत कहो। हाँ। अब काफिर को काफिर ना कहो तो इनसे ये कहो कि तुम अपनी माँ को माँ मत कहो और बाप को बाप मत कहो। कहीं ऐसा ना हो कि हमको माँ जो है वो बाप हो जाए और बाप जो है वो माँ हो जाए। जी तो हाँ, क्योंकि इनका यही सवाल है कि काफिर को काफिर मत कहो। जी। क्या पता कब ईमान लिया है। तो अब यहाँ जवाब ये बेहतर रहेगा कि थानवी को भी मुसलमान ना कहो। अगर आप थानवी को मुसलमान मानते हो, अपने आप को भी मुसलमान ना कहो। अगर अपने आप को मुसलमान मानते हो, अपने बाप को भी मुसलमान मत कहो कि अगर अपने बाप को मुसलमान मानते हो, क्योंकि क्या पता कब काफिर हो जाए। कब काफिर हो जाए, सीधी सी बात है। हमारा बाप भी काफिर, लेकिन इसका और दूसरी बात, जी जी, मान लीजिए जो चचा की लड़की होती है, जो चचेरी बहन है, जी उससे रिश्ता जायज है। हाँ बिल्कुल। उसे बहन ना कहो, क्या पता कब तुम्हारा रिश्ता मियाँ बीबी के रिश्ते में पलट जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तुम्हारे मामू की बहन तुम्हारी बहन है, उसको बहन मत कहो, क्या पता कब तुम्हारा मामू तुम्हारे निकाह में वो अपनी लड़की दे दे। मगर ये उनकी गंदी सोच, गंदी हरकतें। लेकिन अब ये सवाल मैं तो ऐसा जवाब देता हूँ इन लोगों को इनका होने ताकि मुंह उठाने के काबिल और मुंह खोलने के काबिल ना रहें। और मैंने उनको भागते हुए भी देखा है, मतलब नजरों से नहीं, फोन पे जब आदमी कोई भागता है तो महसूस करा जाता है कि हाँ ये भाग रहा है। कहीं आप मेरा जवाब पकड़े कि आपने कहाँ देखा भागते हुए, और भागने का मतलब महसूस करा जाता है कि हाँ अब ये बंदा भाग गया, अब ये किसी से छुड़ा रहा है ना जी। और इसको अब इज्जत में परवीज की जान फंस जाते, मतलब गलत फंस जाने, गलत जगह बोली था। हाँ, जब ये फंस जाते हैं तो सुनते नहीं। हाँ फिर सुनते नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने दोपहर में ये सुना था इसके बारे में, तो आप इससे जो कह रहा था कि मैं दरोगा हूँ, बोल ये करेगा वो करेगा, बड़ा बदतमीजी की बात करने लगा, फिर उसने दरोगा से बात कराई। हाँ, पता हाँ, नहीं हाँ। किसकी बीवी है, सुनिए आप। वो दरोगा नहीं था, शायद उसका दोस्त दरोगा था, हाँ उसका दोस्त या है, जो भी हो, बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने था कि न था। मगर ये प्रेशर बहुत बनाते हैं। हाँ उस वक्त आपके वो जज्बात मैंने देखे, माशाल्लाह, आपको अल्लाह तरक्कियां दे और बहुत अच्छी बात है। कोई गीला होता, कोई ओछा होता तो वो डर के मारे कब का बैठ जाता। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाता हूँ। हाँ, काम नहीं करता, क्योंकि मुझे मारने तक की धमकी आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और सोशल मीडिया पे आपने सुन भी लिया होगा, और गालियां तो बेशुमार सुनने को मिलती हैं। मैं हजरत बहुत टाइम से सुना हूँ आपकी इस गुफ्तगू को, बहुत टाइम से सुना हूँ मैं जी। और क्योंकि मेरा काम जो है वो आरी का काम है। अच्छा हजरत, हाँ आरी मतलब कारचौक? कारचौक। अच्छा, उधर होता है? हाँ बिल्कुल होता है इधर।
काफी होता है। जी। और रामपुर में तो बहुत ही होता है ये काम। हाँ हजरत, इधर बहुत होता है, इधर हमारे यहाँ तो इधर घर घर होता है। अच्छा, घर घर होता है। हाँ हाँ, तो इधर भी काफी हो रहा है काम। जी। वैसे मैं रहने वाला उधर का हूँ, भोजीपुरा, आपने सुना है भोजीपुरा? भोजीपुरा बरेली शरीफ। जी जी जी, हाँ भोजीपुरा का रहने वाला हूँ मैं। इधर जो है एक कमरे पर रह रहा हूँ किराए पे। अच्छा अच्छा, उधर के हमारे कई दोस्त हैं भोजीपुरा के। अच्छा, हाँ तो हमारे दोस्त हैं, आरिफ भाई नाम है उनका, भोजीपुरा के हैं वो। अच्छा बिल्कुल सेम टू सेम। अगर मैं आपको उन्हें अगर कॉल पे मिलूँ तो आप ये नहीं पहचान पाएंगे मेरी आवाज है या उनकी आवाज है। हाँ अच्छा बिल्कुल सेम आवाज और यही लहजा और यही अंदाज बात करने का उनका। जी। और तड़प उनके अंदर भी रहती है, वो भी कोई बात होती है तो इतनी जोर से तड़पते हैं कि है। और मैं कई दिन से नंबर तलाश कर रहा हूँ कि यार मैं हसन भाई के लिए हसन भाई से बात करूँ यार, कैसी करके मेरी बात हो जाए एक बार। और मैं उन्हें मुबारकबाद दूँ इस बात की, कोई आया हमारी उम्मीद के अंदर। तो कितना टाइम हो गया हजरत सुनते हुए? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर? 2 महीने हो गया जरा सुनते। अच्छा अच्छा, 2 महीने हुए हैं। हाँ, ये अचानक इस बंदे ने मुझे बताया, बोले आप वो सुना करो। मैंने कहा क्या? बोले नूर हसन नदवी एक चैनल आता है वो सुना करो। अच्छा हाँ, उसमें देखो मतलब क्या मालूमात होती है। जी। हाँ, तो मैं एक दिन मैंने जब चीजें देखता हूँ तो मैं काम कर रहा था, मैंने लाभ देखने लगा कि अब वो देखा जब उसमें तो फिर समझ आया मैंने कि यार ये तो सुनने की लायक बातें समझना चाहिए इन चीजों को थोड़ा सा। ये लोग गुमराह कर रहे हैं। फिर 2 महीने से फिर मैं लगातार सुनता हूँ। अच्छा, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, जितने भी आप ऑडियो आगे को सुनेंगे, चाहे वो पुरानी हो चाहे नई हो, हर ऑडियो में एक अलग नया अंदाज मिलेगा। हर बंदे से एक अलग अंदाज में बात मिलेगी, चाहे टॉपिक एक ही हो मगर एक अंदाज में बात नहीं होगी। सबसे उसके मतलब सामने वाला जिस तरह का अंदाज रखता है ना, उसी अंदाज में मैं उसको समझाना चाहता हूँ। जी जी। हाँ असल में अभी जो आपने इससे पहले जो कहा था कि मैं इसका जवाब ये नहीं हुआ, इसका जवाब ये हुआ कि उससे मतलब क्या कहते हैं, नानक जी को काफिर मत कहो, अपने बाप को काफिर मत कहो। नहीं, वो है, वो भी ठीक, पर मैं वो ना कह के मैं ये वाली बात कहना इसको पसंद करूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ मैं ये बोल रहा हूँ। जवाब ठीक है कि अपने बाप को बाप मत कहो, क्या पता वो कब तुम्हारी माँ बन जाए। हाँ और उनके कलाम की हिसाब से तो असल में हमारे आला हजरत के ऊपर जो हमारे मुजद्दिद हैं उनके ऊपर जो इल्जाम लगाते हैं कि जिनकी किताबों में ये है वो है, सबसे पहली बात तो इनकी समझ को अल्लाह ने छीन लिया है। जी जी जी, बेशक इनकी समझ को अल्लाह ने छीन लिया है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि महबूब अगर आप मुझसे दुआ करेंगे जी इनके लिए, इसके लिए इन मुनाफिकों के लिए जी तुम्हारे गुस्ताखी जी तो मैं वो दुआ रद्द कर दूंगा जो तुम्हारे गुस्ताखी इनके लिए। जी अल्लाह ने मना फरमाया कि इन गुस्ताखों के लिए जो तुम्हारी शान में गुस्ताखी करेगा। अब ये मेरे आका की शान में गुस्ताखी इस तरह की करते हैं कि असल में जो गैर मुस्लिम है वो भी शर्माते हैं इनकी बातों से जी, मगर इन जाहिलों को, डंगरों को, इन काफिरों को भी पता ही नहीं है। इनके बाप दादाओं ने खुद इनको काफिर करार दिया पहले। हमारे आला हजरत ने ये जब किताबें देखी हैं इनकी तो इनको पहले से ही काफिर करार दिया गया। तो उन्होंने तो फिर हमारे अकीदे को, हमारे ईमान को आगे आने वाली सल्तनत के लिए ये बातें सब बताई हुई जी, ताकि ये छुप ना जाए। वरना हुजूर आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने पहले इनको काफिर नहीं कहा, बल्कि अरब और अजम के जितने भी उलमा थे तमाम उलमा के सामने इन लोगों की बातें वहाँ पेश की। हाँ, फिर उन्होंने कहा कि जो इस तरह का अकीदा रखता है वो तो यकीनन काफिर है, और ऐसे अकीदे रखने वाले को अगर कोई काफिर ना माने वो खुद भी काफिर है। तो आप कितने टाइम से कितने टाइम तक बात करते हैं? हजरत मैं इन लोगों से फजर बाद से लेके मगरिब तक ही बात करना पसंद करता हूँ। मैं मगरिब बाद इन लोगों से बात करना पसंद नहीं करता, क्योंकि पता नहीं कौन किस तरह का बंदा आ जाए, चीखने चिल्लाने वाला हो, कैसा हो, क्या हो। हाँ हाँ, फिर घर में गुफ्तगू तेज हो जाए तो बच्चे के भी। हाँ,
मुझे रात के 2:30 भी कॉल किया था आपको मैंने। हाँ, फिर इंसान है, इंसानी फितरत का तकाजा है कि उसको सुकून भी मिलना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आप अपना कारोबार क्या है? हजरत, पहले तो कोई कारोबार नहीं था, गाड़ी मतलब चलाता था, गाड़ी अभी भी चलाता हूँ, कहीं का काम उम होता है तो। गाड़ी कौन सी है? तो सैयद आले रसूल ने एक रोजगार दिया है माशाल्लाह। माशाल्लाह। तो और इसी काम के जरिए मिला है, जी जी सोशल मीडिया के जरिए। हमारी उनसे बहुत पुरानी मोहब्बत थी, बहुत पुरानी मतलब बातचीत मुलाकात। जी तो बालों वाला ऑयल है, सर में डालने वाला तेल। जी जी अगर किसी के बाल उलझड़ते हों, टूटते हों, जी हाँ, इसके लिए बहुत अच्छा है, बहुत फायदेमंद है तेल। बाल फैमिली में माँ बहन के बाल झड़ते हों, या किसी भाई के बाल झड़ते हों, या बालों में गंजापन जैसा हो, बाल बहुत ज्यादा छीदे हों, इनमें बहुत फायदेमंद तेल है। बालों को झड़ने से रोकता है, बालों को गंजापन होने से रोकता है। अगर कोई भाई जो है गंजा हो गए हैं, मतलब जो चांद हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा झड़ने लगते हैं, इंशाल्लाह उनको भी जो है घना करेगा, जिनके बाल बहुत ज्यादा छीदे हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, तो मतलब जो ऑर्डर के लिए मंगाया जाएगा या वहीं से? हाँ, वैसे आस पास वाले तो आ भी जाते हैं, जी और अगर कोई ऑर्डर कराता है तो फिर वो कोरियर के जरिए भी लगा देता हूँ, या फिर जो है बस वगैरह जो जाती है उधर। एक और हल्द्वानी के भाई कह रहे थे। अच्छा, कितने हाँ। कितने का पैसा है ये? 200 रुपए की तेल की शीशी है हजरत, जी जो मार्केट में 2000, 3000, 5000 ऐसे करके जो शीशी हैं, और वो भी 100 ml की, जी जी। और उनका इतना रिजल्ट भी नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये शीशी अगर मैं किसी को 1000 की दूं तो 1000 की लेगा, इतना रिजल्ट है इसका। पर मैं ऐसा करता नहीं हूँ, किसी का मुझे ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, तो अपने खुद बना रहे हैं आप अपने हाथ से? ना ना ना, ये सैयद आले रसूल ने ही दिया है, और उनके पीर की दी हुई दुआ है ये। सैयद आले रसूल, हाँ, सैयद आले रसूल का ये फार्मूला है, और ये बस दुआ के खातिर, लोगों की खिदमत के खातिर ये काम जो है उन्होंने चालू किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, खिदमत खल्क है। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है जी। इनका कोई भी नुस्खा कभी खाली नहीं गया, यहाँ से लेके शुरू से लेके आखिर तक। और बहुत सारे भाइयों ने मंगाया है, बहुत सारे भाइयों को फायदा हुआ है माशाल्लाह। और एक भाई हमारे मलेशिया में रहते हैं, तो उनके बच्चों के बाल झड़ रहे थे, उन्होंने मंगाया तो बोल रहे थे कि कितने दिन में मतलब फर्क पड़ेगा, पता चलेगा, मालूम हो जाएगा। तो मैंने कहा 15-20 दिन में पता चल जाएगा, रिजल्ट सामने आ जाएगा। अच्छा। हाँ, मगर अल्हम्दुलिल्लाह उनको 8 दिन में रिजल्ट सामने आया। अच्छा, मतलब 200 रुपए की है शीशी है? हाँ, एक शीशी 200 रुपए की है, 200 ml में है। अच्छा। हाँ, मार्केट में जो शीशी है वो ज्यादातर अक्सर 100 ml में होती है। अच्छा। और उनकी कीमत 500, 700, 1300, 1200, 1500, 2000 ऐसे करके उनकी कीमत होती है। हाँ, से आपको क्या अंदाजा लगा, ऐसा लगा कि मैं बाकी सनातन सुन ली? हाँ हजरत, आपकी बातों से तो वही लग रहा है, क्योंकि जो बरेलवी होते हैं उनका अंदाज कुछ और ही होता है, और वो जो लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं अपना असर दिखा देते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, सही बात है, सही बात है। असल में ये फितरत है इनकी। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं पहले सामने वाले को परखता हूँ, मुझे ऑटोमेटिक एहसास हो जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनका मुझे एहसास नहीं हो पाएगा, बहुत कम ऐसे चंद लोग, नहीं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये खुदा की दी हुई कोई निशानी है जिससे मुझे एहसास हो जाता है। कई सारे लोगों के मैं सलाम का जवाब देता हूँ डायरेक्ट, मैं उनसे पूछता ही नहीं तुम कौन हो क्या नहीं हो, क्योंकि उनके सलाम की महक ही बता देती है ये कौन है। सही बात है, सही बात है। हाँ, इसलिए बड़ा खुश नसीब है आप कि अल्लाह ने आपकी आंखों में वो मीज़ान को रखा है, उस तराजू को रखा है कि आप खरी छोटी की पहचान कर लेती, और
ان گلیوں کا کرم یہ اللہ کی عطا ہے, حضور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا فیضان ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. میرے حضرت کا فیضان ہے کہ آپ کچھ بھی پہچان لیتے ہیں اہل سنت والجماعت کی. اور بہت سارے لوگوں کو میں اگر ذرا سی بھی میں کوئی چیز دیکھتا ہوں نا تو میں کھٹک جاتا ہوں. اچھا. ہاں مجھ سے ایک دو ذریعے نے مجھ سے کہا صحابی نے اہل حدیث نے ہاں کہا کہ تم لوگ منادے میں جاتے ہو تو تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ہمارے نبی حاضر ناظر ہیں, موجود ہیں. ہمیں تو ایسا نہیں لگتا. تو ہمیں الحمدللہ ہمیں تو لگتا ہے, ہم تو محسوس کرتے ہیں اور ہوتا بھی ہے. اب بات یہ ہے کہ ہمارے نبی موجود ہوتے ہیں وہاں, حاضر ناظر ہوتے ہیں. تو وہ کہنے لگا ہمیں تو محسوس نہیں ہوتا. تو ہم نے کہ آپ نے دیکھا نہیں نا اس چیز کو کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قتل کے خیال سے وہ لوگ آئے تھے تلواریں دے دے کے, تو میرے آقا نکل گئے تھے سفر کو, اور جو ابھی جہلی تھے وہ سب سو گئے تھے, تاریخ بھی نہ پڑ گئی. جی ہاں تو میں نے ہو سکتا ہے تمہیں وہ مٹی کہیں لگ گئی ہے. جی ہاں تو ہم نے ہو سکتا ہے وہی مٹی تمہیں کہیں لگ گئی ہے. تو بولے یار تم باتیں کیسی کرتے بریلوی سے وہ مٹی لگ گئی ہے, میں موجود تھا وہاں پہ, میں نے وہ مٹی کا اثر قیامت تک رہا تھا. ہاں بہرحال انہیں یہ جواب نہ دے کے یہ بہتر رہے گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس کو ملتا ہے وہ ملنے کا اقرار کرتا ہے, ملنے کا جو ہے وہ اعلان بھی کرتا ہے, اور جس کو نہیں ملتا وہ کہاں کہے گا کہ ہاں ہم کو ملتا ہے. بالکل بالکل صحیح بات ہے. جس کو ولیوں سے نبیوں سے ملتا ہے وہ کہتا ہے ہاں ہمیں ملتا ہے, جس کو نہیں ملتا وہ تو انکار ہی کرے گا نا. اسی طرح کا انکار اس کا ملا ہی نہیں ہے. صحیح بات ہے, سیدھی سی بات. سمجھے. دوسری بات یہ وہ بھی صحیح کہہ رہا ہے, اس کو ملتا ہی نہیں. وہ بھی جھوٹ نہیں بول رہا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حاضر و ناظر بنا کر بھیجا. حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں, زندہ ہیں, اور ہمارے اعمال سے باخبر ہیں, بے خبر نہیں ہیں. بالکل بالکل حق بات ہے. ہم کو وہ دیکھ رہے ہیں, ملاحظہ فرما رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. ٹھیک ہے. بالکل بالکل. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس ساری کائنات کو ایسا کر دیا جیسے کہ کوئی شخص اپنی ہاتھ کی ہتھیلی کو دیکھتا ہو. بالکل بالکل حق بات ہے. میرے آقا کی شان نرالی ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات کو سمیٹ کے اس طرح بنا دیا کہ جیسے کوئی اپنے ہاتھ کی ہتھیلی دیکھتا ہو, تو پھر اچھا ایک اور چیز میں ایک اور مثال دیتا ہوں حضرت. بتائیے حضرت, آپ سے بات کر کے بہت بڑھیا لگ رہا ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ رونگ سے کھڑے ہو رہے ہیں, روح تازہ ہو رہی ہے. ہم اور آپ سبھی لوگ گھر میں چاول بناتے ہیں. چاول بنانے سے پہلے اس کو کسی برتن میں ڈالتے ہیں, تسلے میں, طواق میں, کسی بھی چیز میں, پرات میں, اس سے کنکری بینتے ہیں. تو چاول تو بہت سارے ہوتے ہیں. تو جب وہ چاول ہم پرات میں ڈالتے ہیں اور اس میں سے کنکری بینتے ہیں, تو وہ چاول ہماری قید کے اندر ہوتے ہیں, ہماری قید سے باہر ہوتے ہیں. چاول قید ہاں ہماری گرفت سے باہر ہوتے ہیں کہ ہماری گرفت کے اندر ہوتے ہیں؟ ہوتے ہیں گرفت کے باہر کے ہوں گے. اگر ہماری گرفت سے اندر ہیں تو ہم اسے بین ہی نہیں پائیں گے. بالکل بالکل. ہماری گرفت کے اندر ہیں, ہمارے قابو میں ہیں, تبھی ہم اس کو بین پاتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. سمجھے حضرت. جی تو یہ جو تسلا ہے, یہ جو طواق ہے, یہ ہتھیلی سے بہت زیادہ بڑا ہے. ایک منٹ حضرت میں حضور کے قابل نہیں ہوں, بہت بڑا گناہگار آدمی ہوں. حضرت یہ تو خیر آدمی ہے آپ کی, اگر میں نے کہہ دیا تو حالانکہ مجھے بتا دیجیے تھوڑا سا, حضور کہنے میں گناہ تو نہیں ہے؟ گناہ کی تو بات نہیں ہے, پر یہ لفظ بڑے علماء کے لیے اچھا لگتا ہے. جی یہ لفظ بڑے علماء کے لیے اچھا لگتا ہے, میرے جیسے گناہگار کے لیے نہیں. حضرت میں تو نہیں کہتا کہ آپ گناہگار ہیں, حالانکہ میں بھی گناہگار ہوں, میں آپ سے زیادہ گناہگار ہوں, اس لیے میں نے حضور کہہ دیا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی نسبت سے
चलो फिलहाल कोई बात नहीं है, आप मुझे थोड़ा सा समझाएं, मैं कुछ समझना चाहता हूँ आपसे। तो मैं अभी बता रहा था आपको कि जो हथेली है ना, हथेली, जी तो इससे बहुत ज्यादा बड़ा तबाक है, ये तसला है जिस बर्तन में हम चावल बीन रहे हैं, जी है ना। जी बिल्कुल। तो जब हम कंकरी उस चावलों से निकाल देते हैं ढूंढ ढूंढ के, जी जिस तरफ को हम तवज्जो करते हैं उस तरफ की हम कंकरियां निकालते चले जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो वही मेरे आका दुनिया के जिस हिस्से पर तवज्जो करें, तो क्या मेरे आका हमको मुलाहिजा नहीं फरमाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक, बिल्कुल फरमाते मेरे और आका। हमारा ये दावा नहीं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे हर मिलाद की हर महफिल में तशरीफ लाते हैं, हमारा ये दावा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारा तो ये है कहना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करम फरमाना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं। बेशक बेशक। हाँ, मेरे आका अगर चाहें जी, जिस महफिल में चाहे वहाँ। हाँ, मेरे आका अगर करम फरमाएं, तशरीफ लाना चाहें तो तशरीफ ला सकते हैं, उन्हें कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। मेरे रब ने इख्तियार दिया है अपनी हदीस से ये। और फिर दूसरी बात ये कि जब हम सलाम पढ़ते हैं तो अदब और एहतराम में पढ़ते हैं, बेअदबों की तरह नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो हम अदब में खड़े होते हैं अपने नबी के। हाँ बिल्कुल बिल्कुल खड़े होते भाई हैं। हम अगर नहीं देख पा रहे हैं, हमारी आंखों में वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो पावर नहीं है, तो हमारे नबी तो हमें मुलाहिजा फरमा रहे हैं ना। बेशक बेशक सही बात है, बिल्कुल हक तो बात हम है। अपने नबी के एहतराम में खड़े हुए, हम अपने नबी के अदब में खड़े हुए, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? भाई से बात चल रही है मेरी, आज उम्र लगा है बहुत टाइम की बात। हाँ, वो जो वीडियो पे दर्जियाँ उड़ाते हैं ना, वो हमारे हैं, हम उनके हैं, जी जी, है ना हजरत? बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात है। हमारे हैं, हम उनके हैं, हम अपने नबी के अदब में खड़े हुए, तुम्हारे पेटों में काय का दर्द हो रहा है? बिल्कुल सही बात है। और ये सवाल भी ऐसे इंसान से करते हैं जिसको बेचारे को जवाब देने का तरीका ना मालूम हो। बिल्कुल कतई हक बात तो ये है कि ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि जिसको जवाब नहीं आता। जी, बेचारा अनपढ़ आदमी है, बाशरा है, तो अब उसको मालूमात ही नहीं है इन चीजों की कि कैसे करके इनको जवाब दिया जाए। हाँ, और असल में ये उस बात को लेकर चलते हैं जो नाकाबिल बर्दाश्त होती है, समझिए। जी, हाँ, जो इनके कलेजों को मतलब चीरने वाली बातें होती हैं उसको सब छुपा देंगे। जी, अब ये कहते हैं कि मैं हम मानो भी कौन बन गई, कौन इसको, जबकि ये इन्हीं काफिरों के मानने वाले हैं। जी। इन्हीं काफिर। तो ये बहुत बड़े मुनाफिक हैं हजरत। बस मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो सीधे साधे भोले भाले मुसलमान इन लोगों में धोखे में जा चुके हैं, जी वो वापस पलट के अपने रास्ते पर आ जाएं। बिल्कुल। इसलिए मैं काम करता हूँ, ना कि इसलिए कि वहाबी देवबंदी तौबा करके मुसलमान हो जाएं। हाँ बिल्कुल सही बात है। मेरी नीयत ये है कि जो धोखे में इन लोगों के साथ हैं, धोखे में, जी जी हाँ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने भी ऐलान फरमाया है कि जो मेरे नबी का नहीं वो मेरा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो रसूल पाक की शान में तौहीन कर देता है वो कभी फिर वापस भी नहीं आता, ये भी एक उसूल है। समझ की कोशिश भी नहीं देता फिर। हाँ, हाँ। समझे हजरत? किसको कहते हैं अहले हदीस? अहले हदीस ये वो सीने पे हाथ बांधने वाले, एक गज की टांगे फैला के नमाज पढ़ने वाले औरतों की तरह सीने पे हाथ बांधने वाले, जी, हाँ, इनको अहले हदीस बोलते हैं। ये विक्टोरिया की नाजायज औलादे हैं। ये अहले हदीस होते हैं, अहले हदीस। हाँ, अहले हदीस। अच्छा, हाँ, ये मलका विक्टोरियन ने जो है ये नाम रखा है, ये नाम दिया है। मैं असल में ये कहना चाह रहा हूँ कि अहले हदीस का मतलब ये तो नहीं है कि ये हदीस के मानने वाले। इनको एक भी हदीस याद नहीं होती, इनको गुस्ल का तरीका भी नहीं मालूम होता। आप सुने तो कम से कम मेरी ऑडियो, मेरी गुफ्तगू सुने। बिल्कुल बिल्कुल सुनता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरीके से सुनता हूँ। यही पता नहीं है कि इरशाद की सुन्नतों में कैसे करके क्या करना चाहिए। हाँ, अगर इनको छोटा सा मसला पूछ लो वो तक का याद नहीं होता इन्हें। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, तो ये अहले हदीस का मतलब एक बार मैंने तकरीर सुनी थी, मौलाना जोखनपुरी जो है, मौलाना खबीर। जी जी, मौलाना सगीर अहमद साहब जोखनपुरी, मौलाना सगीर अहमद साहब की तकरीर सुनी थी, तो उन्होंने कहा था कि ये अहले हदीस नहीं है बल्कि हम हैं अहले हदीस। जी, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी हदीसें उनको याद हैं, हाफिजुल हदीस भी कहा जाता है उनको।
हाँ, तो वही तो कह रहे थे कि अहले हदीस ये नहीं है, इनको कोई हदीस हदीस नहीं आती ना, ये मानते हैं अहले हदीस और हम मानते हैं हदीसों को, ना हदीस को मानते हैं। अब देखिए हजरत, घी दो तरह के हैं और दोनों को घी कहकर बुलाया जाता है। हाँ बिल्कुल, एक को देसी घी और एक को डालडा घी, डालडा घी है ना। जी। हाँ, पहली बात तो ये है कि कहीं अहले हदीस या देवबंदी या ये किसी का भी कोई नाम नहीं कि कौन हक पर है कौन जन्नती है, मगर अहले सुन्नत व जमात को जन्नती कहा गया। बिल्कुल। और इन लोगों की किताब से साबित है कि हक जमात जो है वो अहले सुन्नत व जमात ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आप को अहले सुन्नत कहलाते हैं। हाँ, बिल्कुल। और इनसे बचने के लिए हमारे लिए एक नाम काफी है जो आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह। हाँ, सही बात है। हाँ, तो हजरत आपका व्हाट्सएप नंबर यही है? हाँ हजरत, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है। अच्छा, चलो ठीक है, मैं बात करता हूँ जरा। हुजूर ये शादी माफ करना, मेहमान आ गए जरा घर पे, मैं आपसे बात कर रहा था। मेहमान आ गए घर पे। अच्छा ठीक है हजरत, ठीक है, मेहमान नवाजी कीजिए मेहमानों की। ये अपनी आपस की वस्तु है, इससे बहुत लोगों को फायदा भी मिलेगा। चलो ठीक है। हाँ, आपको भी सुनने मिलेगी, आपके रिश्तेदार भी देख लेंगे, सुन लेंगे, और कितने लोग धोखे में होते हैं और कितने लोगों को बात समझ आती है, कितनों को नहीं आती, ये भी लोग अंदाजा लगाएंगे। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और एक शौक भी पैदा होता है। बिल्कुल सही बात है। समझे हजरत? मान लीजिए किसी ने आपको बताया, आपने शायद सुना होगा कि चलो लाओ सुन के देखते हैं क्या है क्या नहीं है। जी। आपने सुना, आपको पसंद आया। जी, मुझे बहुत पसंद आया, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसमें मेरे आका की शान को बयान किया गया और आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह तआला अलैह की शान को बयान किया गया और उनके कलेजे चीरे गए। असल में मुझे सबसे बड़ी बात ये लगी कि आप जब बोलते हैं तो फिर डट नहीं पाते, आपके सामने भाग जाते हैं। कोई कहता है नमाज का वक्त हो गया, क्या भले दिन के 11 बजे हो, तो मैं कहते अजान हुई, नमाज का वक्त हो गया। एक तो 11 बजे बोल रहा था कि मैंने कहा 11:30 बज रहा है। आपने कहा था 11 बजे, यार अगर मैं कॉल पर होता तो मैं इससे कहता कि बताओ ताज्जुद के अलावा भी कोई नमाज को रख दी गई 11 बजे के दिन से। तो मैं ये सोच रहा था कि यार 11 बजे भाग जाएगी, उस वक्त तो कोई नमाज का टाइम ही नहीं है। हाँ, कोई टाइम ही नहीं है। नहीं, 1 बजे से चालू हो जाता है, 12:30 बजे से चालू हो जाता है कि अगर कुछ जुम्मे का टाइम होता है तो 10:30 बजे के आसपास से टाइम खत्म है। हाँ, और जो 11 बजे से जो भागना चाह रहे थे और अपने आप हाथ दे देते, अपने जो फंस जाते हैं ना बात में। आप सोचते हैं कि अगर हम फूल काटते हैं तो हमारी बड़ा हिमाकत होगी। सिखाया जाता है कि ऐसे मत फोन काटो, कुछ ऐसे काट देते हैं, कुछ न कह के बहाना लेके काटते हैं। हाँ, ये मतलब बहाना कर देते हैं कि अब इनको, अभी साहब बात कर रहे थे, पुलिस की जॉब कर रहे थे, नीचे है वो, तो उन्होंने कह दिया मुझे इल्लाह मत आले इमरान की, मतलब कुरान पाक में जो सूरह है आले इमरान। हाँ, वो तो नहीं है रफीक कुरैशी पुलिस सर्विस। हाँ, रफीक कुरैशी तो बार कह रहे मुझे उलझाओ मत। मैंने की यार दुनिया की तालीम तो इतनी हासिल कर ली मगर दीन का कुछ नहीं पढ़ा। हाँ, बेकार है, ऐसी दौलत भी किसी काम की नहीं है, कोई फायदा नहीं है ऐसी दौलत की। और असल में अब वजह क्या है कि ये कुछ लोग ये कहते हैं, हमसे पूछते हैं कि यार हजरत ये बताइए, कोई बादशाह आदमी है हजरत? जी माशाल्लाह। जी हाँ, मगर पढ़ा लिखा नहीं है। तो कुछ लोग देखिए कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। जिसने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की वो आदमी कामयाब है। बिल्कुल हकीकत बात है। हम गुनहगार हैं पर गद्दार नहीं। हमें रसूल पाक की मोहब्बत दुनिया में भी काम आएगी और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में भी काम आएगी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। अगर हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नामुकम्मल है, सही बात है, बिल्कुल बात सही है। माशाअल्लाह
بہت اچھا لگا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں, ہم سے یہ پوچھتے ہیں کہ مطلب بات کو بھول گیا تھوڑا سا میں. ٹھیک ہے حضرت, یاد دھیان سے تھوڑی سی. چلیے کوئی بات نہیں ہے, جب یاد آ جائے تو بتا دیجیے گا. میں حضرت سے بات کروں گا. اصل میں پہلی بار آپ سے بات ہوئی تو میں سوچ رہا تھا کہ کون سے لہجے میں بات کروں حضرت سے, کہیں ایسا نہ ہو کہ بہادری میں بریلی کو بھی مطلب جو ہے وہ دھوکے میں ڈال رکھا ہے. ہاں, یہ لوگ الحمدللہ مجھے بہت زیادہ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, بہت زیادہ. ہاں, مگر اللہ تعالیٰ نے وہ ہنر دیا ہے کہ یہ خود ہی اپنا پورا زہل اگل دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد. ارے یہ تو کہیں نہ پائے نا, نبی کے زمانے میں پائے نا, اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پائے نا, آج پا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے, عزت مومنوں کے لیے ہے اور ذلت اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے لیے, کافر منافقوں کے لیے, بد مذہبوں کے لیے, بے دینوں کے لیے نظر آ رہے ہیں. جہاں دیکھو رتبہ نظر ہوتے آ رہے ہیں. بے شک بے شک. اسی لیے تو یہ مجھے گالیاں بکتے ہیں, منع کرتے ہیں کہ تو یہ کیا کرتا ہے, طرح طرح کے مجھے الزام دیتے ہیں. اور آج دنیا میں جو بھی فساد ہے وہ صرف ان کی وجہ سے, جی سب ان کی وجہ سے ہے. اب کوئی جو بندی ہے باہر جی, غیر مسلم لوگ تو انہیں بھی مسلمان مانتے ہیں نا. ہاں, کچھ ہے, کچھ لوگ غیر مسلم ہے, اور انہی لوگوں کو دیکھ کے ہم, ہاں انہی لوگوں کو دیکھ کے ہمیں بدنام کرتے ہیں لوگ. مگر حضرت صاحب ان کو بھی نہیں مانتے مسلمان. نہ وہ بہت سارے غیر مسلم ہندو لوگ جو ہے نا پہچاننے لگے ہیں, پہچاننے لگے ہیں کہ ٹنگا پیجامہ اور ماتھے پہ ٹیکا. ہاں 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 ہاں, جو کالی بندی آ جاتی ہے نا ان کو, جی جی, وہ 40 دن میں اگاتی ہے ان کی. ہاں ٹھیک ہے حضرت, پھر کرتے ہیں بات آپ سے, دوسرے نمبر سے کریں گے. یہ نمبر سے کی ہوتا تھا, میں نے ایسا لاؤ لگا کے دیکھی. اچھا, چلیے ٹھیک ہے انشاءاللہ. بس میں تو آپ سے بھی یہی کہوں گا اور جتنے بھائی ہیں ان سب کو یہی کہوں گا کہ ان لوگوں کی تو صحبت سے بھی دور رہو. بالکل بے شک, اللہ بچائے رکھے ہمیں. اور ان سے اگر قربت رکھو تھوڑی بہت, کوئی کام ہو یا کوئی بات ہو, تو اپنی بات کو رکھو ان کے سامنے. بالکل بالکل. ہاں, اپنے نبی کی محبت کا پیغام دو, ان کو دین کی دعوت دو, مگر ان کے جھانسے میں مت آؤ. ٹیکنیک بڑی جو ہے ان کی تیز ہے. اگر انہوں نے دیکھ لیا کہ یہ آدمی زبردست ہے, پاورفل ہے, تو یہ دیکھ لیں گے کہ ہاں میری ہار ہونے لگی, تو یہ چپی سادھ لیں گے, خاموشی اختیار کر لیں گے, کہیں گے نہیں یار ہم فساد کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہاں ہاں, اب بڑے بڑے علماء بھی میں نے یہ دیکھا ہے آپ کے سامنے, بڑے بڑے علماء بھی وہ بھی یہ کہہ دیتے, ارے بھائی میں عام آدمی ہوں, عام آدمی. ہاں, بڑے لوگ اب تک ایسے آئے جنہوں نے شروع میں عام آدمی بتایا, مولانا نہیں بتایا. جب قسم کھلوائی, ایمانداری کے ساتھ جب بات آئی تو بولے ہاں میں پڑھا لکھا ہوں, یہ پڑھا ہوں, وہ پڑھا ہوں. چلو ٹھیک ہے حضرت, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے. ٹھیک ہے حضرت, شکریہ, جزاک اللہ. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے. ہاں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مومنوں کو راہ حق پر قائم دائم رکھے, اسی پر خاتمہ بالخیر فرمائے, اور جب اس دنیا سے رخصتی ہو تو لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جاری ہوں. ٹھیک ہے حضرت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.